It's honestly such a good day to talk about everything that has gone wrong. But I cannot do that when my skin looks this tired and this dull. So to fix that, I've been trying out the Mamaearth Upton face wash and face mask. Now when I stayed at home with my mom, we used to make these homemade Uptons and face packs every single week, because I strongly believe that Uptons are the recipe and the remedy for every skin trouble. But ever since I moved out, I simply don't have the time or the recipes that my mom had. Pamper your skin with the age-old tradition of Upton and let your dull, tan skin rejuvenate, feel fresh and bright. Undo the effects of tan, pollution, dirt, harmful UV rays and harsh weather conditions with Mamaearth Upton face wash. Upton is traditionally known to fight suntan and brighten skin tone, and because of Mamaearth's no toxins and no harmful chemicals philosophy, you won't find any silicons, parabens, mineral oil and dyes in their Upton face wash. So using this face wash, you can brighten your skin, repair sun damage, remove tan, and it is completely safe to use even if you have super sensitive skin. I would highly recommend that you follow up the Upton face wash with the face mask. Now let's indulge in the age-old tradition of Upton and let it rejuvenate our face for a fresh, bright, flawless look with Mamaearth's Upton face mask. The Upton face mask also has papaya as a key ingredient, which effectively decreases inflammation and removes dead cells from the skin surface, making it appear brighter and supple. Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. Another amazing thing about Mamaearth is that they are plastic positive. They recycle more plastic than they use. All Mamaearth products are free from harmful chemicals and all natural. Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discounts. All Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa, Mamaearth's official website and their app. And of course I have a coupon code for you guys, because it's almost Christmas and I somehow feel like I have to give something back to you guys. So here is my coupon code. It is Swami 2021 SWAMY 2021. You will get a discount of 20% on the Mamaearth website and app. So make sure to check the description box below, because I will be leaving all the necessary links, my coupon code, direct links to the products and everything in the description box below, so make sure that you check it out. Now I should probably shower and get ready and get started with the video, which is the reason that we're all here. I must say, रूएल ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है. बादशाह इतना अच्छा मेरे को इमेजिन नहीं हुआ था कि बादशाह वो जुगनू गाने पे इतना कूल नाच सकता है. वीडियो बहुत cool है. Shout out to रूएल, my boy. Only you can do it. How are you guys? I hope everyone is doing great. I hope you guys are staying safe. हम लोगों के outfits से तुमको थोड़ा सा idea हो रहा होगा that it is finally winters in Delhi. इतना अच्छा weather है, सब इतना अच्छा चल रहा है. I think it's a great time to talk about stuff जो उतना अच्छा नहीं है ना? That's right. क्योंकि मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सब कुछ अच्छा ही होते जाएगा तो फिर हम हैं कैप्टन प्लैनेट. कैप्टन प्लैनेट, ही इज द हीरो. टुडे तुमको पता है हम क्या कर रहे हैं? नहीं. ऑलराइट. मेरे को तुम बताता है, कभी भी तुमने बताया, क्योंकि तुम मुझे बता देगा तो तुम्हारे वीडियो में मैं ज्यादा कूल दिखूंगा ना, इसलिए तुम कभी नहीं बताता, मुझको पता है. हम एक रील ट्रेंड रिव्यू कर रहे हैं. बाकी सब ट्रेंड्स से काफी ज्यादा डेंजरस है. डेंजरस है? हाँ, फॉर द सोसाइटी एज अ होल. काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है. क्या बात कर रहा है? काफी ज्यादा सीरियस है. इससे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या हो सकता है? Obviously we're gonna clown on those people, क्योंकि सीरियस चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे. Clown on those people are soft. I learned a new vocabulary. I mean the fact कि इस पोस्ट पे कमेंट्स ऑफ है says a lot, है ना? मतलब मैंने देखा ही नहीं. हाँ, मैं उसका आईब्रो देखता रह गया. क्यों? जैसे नॉर्मल हुआ. Instead of moving forward as a country, as a community, हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं. एक्चुअल में मतलब अभी जस्ट फेयर एंड लवली बैन हुआ
फेयर ये वर्ड यूज करने के लिए तुम लोग इन लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं। I mean, मेरे को ऐसा लगता है कि उसने जो ऐसा कलर चेंज किया, हाँ। वो वैसा आईब्रो होना इज द प्रॉब्लम। We need a new trend जहाँ पे लोगों के आईब्रोज रिप्लेस हो जाएंगे। मम्मी डैडी बोलते नहीं है क्या कुछ? ये कहाँ से लेके आए? तो मेरे बॉल पे कभी नहीं आया ये। अभी तो बहुत कुछ आएगा। 441K लाइक्स है, व्यूज भी नहीं है। गुलाब जामुन को चाशनी में डालने के बाद ग्लो कर रही है वो। हाँ। मतलब फर्स्ट ऑफ अगर तुम्हारा दिल कुछ भी करके ऐसे शेप का है तो आई थिंक दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम, है ना? और अगर तुम्हारा दिल अगर ऐसे मेरे को समझा नहीं वो किया क्या। सबसे पहले तो वो ये क्यों गया उसके पास वीडियो में, बट हाँ वही मेरे को उधर से मैं क्लूलेस हो गया। मतलब मेरे को थोड़ा सा ये हुआ, टेटवा पकड़ना चाहता था वो शायद। मतलब मैं तेरा फोटो इतना लाइक करूंगा कि तेरा टेटवा टाइट हो जाएगा। उसका आई थिंक मैसेज ये था कि डोंट वरी सिस्टर, यू आर स्टिल ब्यूटिफुल। द डेफिनेशन ऑफ अ पिक मी बॉय को पता है वो लड़के होते हैं जिनको लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब आई एम सच अ नाइस गाय, बट लड़कियां मतलब गर्ल्स ऑलवेज गो फॉर द बैड गाइज ना, इसके लिए मैं सिंगल हूँ क्लियरली, क्योंकि तुम में प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव ऑन। ये 3 साल का है। मेरे को लगता है इंस्टाग्राम को बैन कर देना चाहिए। कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ भी करते हैं तो वायलेट हो जाते हैं। हाँ। अभी क्यों नहीं हो रहे? Don't judge a book by its cover. What cover, bro? लैमिनेट होके घूमते हैं क्या लोग? Clearly we are all ब्राउन स्किन्ड, राइट? तो तुम्हारा मतलब क्या है कि जो लोग ज्यादा ब्राउन होते हैं वो मतलब इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट डिजायरेबल। थोड़ा सा मैंने बोला ना डिस्टर्बिंग है। बैकग्राउंड में लड़कों का ये करना मुझे स्कार कर गया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 3 लोग मिले, ये आइडिया निकला और तीनों में से किसी एक को भी नहीं लगा कि इसके बारे में मतलब कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए कि भाई आर यू फकिंग स्टूपिड, यू शुड नॉट डू दिस। अगेन yes, he's back. मतलब जब वो डार्क स्किन की थी तुम उसको देख रहे थे जैसे कि तुम जूम में किसी एनिमल को देख रहे हो, और जैसे वो फिल्टर्स के थ्रू लाइट हुई तो भाई लड़के बड़े लूजर्स है। लड़के छोड़ो पूरा कम्युनिटी लूजर है ये जो भी ये सब चीज करता है। ओह शिट। एंड क्लियरली ये लड़कियां जो कर रही है दे आर वेरी यंग, मतलब बच्चे हैं ये लोग। मैं ये सोचता हूँ कि उनके आपस में अगर कोई जेन्युइनली ये टोन का होगा, ये कलर टोन का रहेगा तो उसको कैसे ट्रीट करते रहोगे? हाँ। जब ये कर रहा ना मन मस्त इधर तभी मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ जिसका भी अकाउंट है ये करने का पॉइंट क्या है कि थैंक गॉड हम लोग लाइट है, अगर हम डार्क होते तो बहुत बुरा होता। नहीं, एंगेजमेंट और जो उनको मिल गया 47,000। अरे जेन्युइनली बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पढ़ा ही नहीं है, लोगों को ये नहीं पढ़ा है किस चीज पे लोगों को लाइक करना चाहिए, लाइक दबता कैसे। बेस्ट जो वीडियोस थे मेरे हिसाब से वो मैंने लास्ट के 2 के लिए बचा के रखे। ऐसा बोलते हैं। I'm just very sad and very sorry कि चाइल्ड सर्विसेज इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज क्लियरली इनके पेरेंट्स जो हैं वो अपना जॉब अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक उसके कैप्शन में ऐसा कुछ है, आई एम नॉट अगेंस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, जस्ट एन एक्ट, क्यूट प्रिया गर्ल, #crazy।
You definitely are crazy. इसका सोल्यूशन क्या है मैं वो सोच रहा हूँ, एक लास्ट वीडियो देख लेते हैं पहले। मैंने बोला कि ये वाला वीडियो बेस्ट है, ये इसके वीडियो के वजह से नहीं, इसके वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है उसके वजह से बेस्ट है। क्यों? न्यू ट्रेंड आया है, अफ्रीका टू इंग्लैंड। गंगोड़े गंगोड़े बहन के। जब तुम्हारा सरनेम लिटरली साउंड्स लाइक अ स्लैंग, हम नहीं बोल रहे गंदा है, बट लाइक इट जस्ट साउंड्स लाइक इट, तो फिर मतलब क्लियरली तुम्हारे पास और चीजें हैं टेंशन लेने के लिए, तो तुम उस पे वर्क करो, है ना? तो फिर तुम डालो ही मत। इसका आईडी है रॉयल गर्ल, बट आई थिंक ही इज अ रॉयल सिम्प। सांवले रंग में भी प्यारी लगती हो आप भी। बड़े अनोइंग है, तुम क्या लेके आए ये, फिर किधर लेके आए? मैंने बोला था वन लुक एट योर एक्सप्लोर पेज और तुमको समझ में आ जाएगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग विद दिस कंट्री। बहुत सारी चीजें अच्छी भी है, नो डाउट। जो चीजें गलत है वो इतनी गलत है कि उनको एक्सक्यूज नहीं कर सकते। एंड स्पेशली मतलब रेसिज्म इज अ ह्यूज डील इन द वेस्ट, क्योंकि वहां पे व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक्स है, बट हम तो ब्राउन है, हम तो सब ब्राउन है। तुम लोग लड़ रहे हो क्योंकि कोई लाइट ब्राउन होता है, कोई डार्क ब्राउन होता है। व्हाट? हाउ डज इट मेक सेंस? ह्यूमन या इमोशनलेस वो बोल सकता है। And I personally think, because since I also get a lot of hate comments, a lot of trolling, so मुझे पता है कितना hard है वो सब चीज से deal करना, but honestly guys, like if anyone wants to go ahead and troll these people, you are sort of like educate करना भी, हम लोग किसी को भी किस level तक educate कर सकते हैं। Since जब से उन लोगों ने post किया है, हर टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं, मोस्टली कमेंट्स यही आ रहे हैं कि टेक दिस डाउन, ये चीज बैन होना चाहिए, तुम लोग रेसिज्म फैला रहे हो, तुम कलरिज्म फैला रहे हो, बट दे आर नॉट डूइंग इट। क्यों? क्योंकि उनको व्यूज आ रहे हैं, एंड दैट इज प्रोबब्ली द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो इन लोगों को व्यूज दिलवाने वाला है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अपना इंटेग्रिटी तुम कितना बेच सकते हो यार? लेके जाएंगे ये व्यूज में, यही सोच रहा हूँ कि व्यूज का होगा क्या? मिलियन गया भी, तुम क्या बोलोगे? मेरे ये वीडियो पे मिलियन गया। आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी लोग मुझे देखते हैं, जो भी लोग शुभांकर को देखते हैं, वी आर ऑल वेरी इवॉल्व्ड। हम लोग ये सब चीजों से काफी मतलब ऊपर है। जैसे तुमने बोला भी कि तुम्हारे कभी वॉल पे ये सब आया ही नहीं। हाँ, मेरे वॉल पे नहीं है। मुझे किसी ने भेजा है, मुझसे किसी ने बोला कि ये चीज पे मतलब रिएक्ट करना चाहिए, दैट आई शुड टॉक अबाउट इट। अच्छा किया। तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया है, मैंने देखा कि काफी लोग कर रहे हैं, एंड आई थिंक अपेरेंटली इट स्टार्टेड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। मोमेंटम इंडिया में आके पकड़ा। इंडिया में कितने लोग हैं और कितने येड़े लोग हैं। लोगों से ये नहीं है कितने, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल येड़े ही है। वही है कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि तुम सोशल मीडिया पे क्या पुट अप कर रहे हो, तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब सोशल मीडिया के बाहर भी एक बहुत रियल वर्ल्ड है। हाँ। जिस चीज का तुम लोग सोशल मीडिया पे मजाक बना रहे हो वो किसी का रियलिटी है बाहर, रियलिटी है। तुम ये सोचो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है ऑलरेडी। एंड वैसे भी इंडिया में कलर के ऊपर, साइज के ऊपर, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर वैसे भी लोग इतना ज्यादा फ्री समझते हैं अपने आप को कॉमेंट करने के लिए। तुम रोड पे निकलोगे, तुमको कोई भी बोल के कुछ भी चला जाता है। तुम किसी पुराने रिश्तेदार से मिलोगे जिसका तुमको नाम भी नहीं पता, तुमको मुंह भी नहीं याद, वो तुमको बोलेगा अरे तूने तो बहुत वेट गेन कर लिया, अरे तू तो बहुत पतली हो गई। मोस्टली अडल्ट्स को काफी ज्यादा उनको एक एंटाइटलमेंट फील होता है कि हम लोग कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं अरे तू तो मोटी हो गई, अरे तू तो पतली हो गई, अरे तू टैन हो गई। दिस इज नॉट ओके, एंड आई डोंट थिंक जब तक हम लोग सब, एंड बाय सब आई जस्ट डोंट मीन माई ऑडियंस, हम लोग तो ऑब्वियसली सब है ही, बट सबके सब कलेक्टिवली मिलके एक स्टैंड नहीं लेते अगेंस्ट दीज थिंग्स। ओह गॉड, डिस्टर्बिंग। आई थिंक इट्स अ लिटिल डिस्टर्बिंग। और वैसे भी हम लोगों का थोड़ा सा चलते रहता है, और ये सब चीजें देख के और हम ऐसे हो गए। वही सोच रहा हूँ कि आई थिंक ऑनेस्टली हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक दूसरे की तरफ। तुमको कहीं भी ये सब चीजें दिखाई देती है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर कलर, इट्स बुलिंग ऑफ एनी काइंड। कहीं पे भी दिखता है, जस्ट टेक अ स्टैंड, से व्हाट यू हैव टू, अदरवाइज ये जगह रहने के लिए और ज्यादा खराब होने वाली है। बिकॉज आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर जनरेशन ऑनेस्टली। नाना दादी का जो जनरेशन था वर्सेस हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में उतना मेजर डिफरेंस है जितना डिफरेंस हमारे पेरेंट्स और हम लोगों में। आई ऑनेस्टली थिंक वी आर केपेबल ऑफ रेवोल्यूशंस, बट ओनली व्हेन वी हैव द स्पाइन टू स्टैंड फॉर इट। ठीक है ना, जो कर रहा है उसको करने दो, उसको खुशी मिल रही है तो करने दो। नहीं, उसका 20 मिनट का खुशी छीन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे कम से कम 20 लड़कियों की इनसिक्योरिटीज को बचा रही हूँ।
You know, because people are very insecure about their physical attributes, and I don't think मुझे ये चीज loudly बोलने का भी जरूरत है. जितने insecurities मेरे में है, जितना तुम में है, उतना ही सब में है. ये रील ट्रेंड देख के मुझे realize हुआ how important it is to see the right things, to watch the right kind of media, to not support the kind of people that do these kind of things. I am very sorry if this video was triggering for some of you guys, because I know that this was a little triggering for me personally, and if you guys are struggling too, please know that I still love you. If you genuinely need to talk, I will always be around. This has just made me very sad. So if you guys resonated, if you guys liked what I said, and if you guys like seeing this, make sure that you like, share, subscribe, do your thing, and share this with your friends, share this on your feed if you guys think what we said was important or relevant at all. हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है, तो कमेंट करके बताना कि तुम्हारा क्या सोच है, या ऐसा तुमको और कोई भी ट्रेंड लगता है जो अनफेयर हो रहा है और उसके बारे में हमको बात करना चाहिए, तो लेट अस नो. फिलहाल मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि मेरा पैर बहुत दुख रहा है. You heard him. और तुम मेरी लाइट के आगे आगे मत घूमो. Sorry. And I'll see you guys the next time. Take care of yourself. Bye.